everyone, welcome back. I hope you all are doing well. Wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year in advance. So in today's video, I'm gonna share the list of my product which I personally feel are overhyped this year. इसमें कुछ एक ऐसे products हैं जिनको मैं बिल्कुल भी use नहीं कर पाई हूँ and they are in my disappointment list as well. But now rest of the products ऐसे हैं जिनको मैं use कर पाई हूँ, but I personally feel कि उनकी hype बहुत ज़्यादा हो गई है इस साल और मतलब मुझे वो personally worth नहीं लगे hype के. So yeah, without wasting a minute, let's get started. Now the very first overhyped product of this year was Cleanse Me Cleanser. I know ये बहुत सारे लोगों का होली ग्रेल है, बहुत सारे लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, but for me this was overhyped because this gave me burning sensation on my face और I'm not able to use this one. This is in my disappointment list as well because मैं इसको use ही नहीं कर पाई. फेस ही इतने अच्छे से क्लीन नहीं करता है तो बॉडी तो ये कहाँ क्लीन करेगा. So I'm not even able to use this one on my body. So it was a complete waste for me. Not only me, you know, जिस पे ये सूट नहीं किया है, बहुत सारे और भी लोग हैं जिन पे ये प्रोडक्ट सूट नहीं हुआ है. So I feel this was the overhyped product of this 2021. Second overhyped product of this year was Requel का मुरमुरु कंडीशनर. ना एक तो बहुत ज़्यादा प्राइसी है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है और ऊपर से मुझे पर्सनली बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि that does something to my hairs. Like I don't know, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि आप इसको कंटिन्यू यूज़ करो, you know, आप 4-5 महीने के लिए यूज़ करो, देन आपको डिफरेंस फील होगा. बट लाइक आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस वन. लाइक जो रिजल्ट्स इससे मिलते हैं वो मतलब उतने ज़्यादा अमेजिंग नहीं है. लाइक मैंने उसके रिव्यू में भी बोला था कि यू नो मतलब उसके कंपैरेटिवली जो मेरा डव कंडीशनर है वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है. बट आई डोंट नो, मे बी आई ट्राई अगेन दैट. लाइक मैंने फिनिश कर दी है 1 ट्यूब, बट मुझे वो उतना ज़्यादा अमेजिंग नहीं लगा है. सो आई फील कि बहुत ज़्यादा उसका हाइप है एंड आई थिंक दैट डजंट वर्थ द हाइप according to me. Okay, overhyped product of this 2021 was Goodal Vitamin C. Now मैंने इस सीरम के बारे में इतना ज़्यादा सुना था कि you know it's a great you know dark spot treatment है, dark spots को you know reduce करता है और you know बहुत अच्छे से काम करता है dark spots पे. The time I use this one now, this do have alpha-arbutin, this do have niacinamide जो आपके acne marks को fade away करने में definitely help करेगा. But this is not the best vitamin C available in Indian market because इसमें जो green tangerine है वो you know 2% alpha arbutin के बाद है. So you might have 2% or 1% of vitamin C. So I don't feel कि you know it's the best vitamin C in the market. But yes, brightening serum आप इसको बोल सकते हो, but you cannot say it a vitamin C serum. So I was not very happy with this one. But ठीक है, this has worked well on my face. कोई reaction नहीं निकला है, कुछ भी नहीं है, suited well. और मैं use भी इसको कर पाऊँगी, like face पे नहीं होगा तो body पे हो जाएगा. But again it was overhyped product of 2021. Next overhyped product and I think ये काफ़ी टाइम से overhyped है is this Klairs का Supple Preparation Unscented Toner. Like I am not very impressed with this toner. Like yes, this do provide you hydration. This has that gummy like texture, serum like texture है, थोड़ा सा body इसके अंदर है. This do have hyaluronic acid. This do have peptides. बहुत less concentration में peptides होंगे I feel. Ceramides भी I think इसके अंदर है, bunch of antioxidant this has, but I personally didn't like that. Like मुझे ये उतना ज़्यादा impressive नहीं लगा to be very honest. So that's why I feel कि ये you know it's the most overrated and overhyped product of this 2021. Next overhyped and overrated product of this 2021 was Aqua Oat Moisturizer. ओ माई गॉड, मुझे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती थी इस प्रोडक्ट की कि प्लीज़ रिव्यू करिए. इट्स एन अफोर्डेबल सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र एंड
मैंने इसको ट्राई किया, मुझे उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा। मैंने इसका लोशन भी ट्राई किया था एंड एज वेल एज द मॉइस्चराइजर मैंने इसका यूज़ किया था, तो उतना ज़्यादा मुझे इंप्रेसिव ये नहीं लगा बिकॉज जो आपका कोलेस्ट्रॉल है या सेरामाइड्स एंड दैट कम्स आफ्टर फिनॉक्सीथेनोल एंड वी ऑल नो दैट फिनॉक्सीथेनोल का जो सेफेस्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है एज अ प्रिजर्वेटिव वो 1% से नीचे होता है या 1% होता है। सो वो बाकी सब चीज़ें उसके बाद आई थी, तो आई वुड से बिल्कुल लास्ट में डले हुए हैं सेरामाइड्स, तो बहुत ही पॉइंट्स की कॉन्सेंट्रेशन में होंगे, तो आई डोंट नो कि वो कितना आपको बेनिफिट दे पाएंगे। सो कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं थी। इट्स नॉट एट ऑल थिक मॉइस्चराइजर, मतलब बहुत ही मीडियम सी कंसिस्टेंसी है और थोड़ी सी मैट फिनिश आपको देता है। मुझे नहीं पता, मतलब मुझे उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया उसको यूज़ करके। आई कांट से दैट यू नो दैट्स अ बेस्ट सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर। आई हैव रिसेंटली मेड अ वीडियो ऑन टॉप 5 और बेस्ट सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर, यू कैन चेक हियर। मैं यहाँ उसका लिंक दे दूँगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो यू कैन चेक अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप उनमें से आप कोई चूज़ कर सकते हो। बट आई फील this is not the best ceramide based moisturizer available in Indian market. Next overhyped product of this year was Plum का Hello Aloe Vera Gel. Now इसकी इतनी ज़्यादा प्रमोशन इस ब्रांड ने करी है, every other YouTuber was doing that, you know, शॉर्ट्स में, चाहे आपकी स्टोरीज में, वीडियोज़ में, 5 hacks of aloe vera, पता नहीं क्या क्या उसमें चल रहा था। आई ऑल्सो ट्राइड दिस आउट एंड आई फील कि बहुत ज़्यादा इसका हाइप बना दिया गया था बिकॉज इट्स नॉट द बेस्ट और प्योर एलोवेरा और 100% प्योर एलोवेरा जेल, बिकॉज दिस डू हैव अदर थिंग्स एज वेल, लाइक रोज एक्सट्रैक्ट भी था, आई थिंक इसमें कुछ और चीज़ें भी डली हुई हैं। दिस डू हैव सैलिसिलिक एसिड जो कि ऑफकोर्स एज अ प्रिजर्वेटिव यूज हुआ हुआ, बट स्टिल दैट हैज़ अ लॉट अदर थिंग्स। नाउ इंस्टेड ऑफ दिस आई वुड से यू कैन गो फॉर द विल्वा एलोवेरा जेल दैट हैज़ 99% ऑफ प्योर एलोवेरा। उसके अलावा जो 1% है वो जस्ट उसके टेक्सचर एनहांसर्स हैं और प्रिजर्वेटिव है, दैट इज इट, और उसके अंदर कुछ भी नहीं है एंड दैट वर्क्स ब्यूटिफुली। ओके, इफ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन, ट्राई दैट आउट, आई एम श्योर आप रिग्रेट नहीं करोगे। बट दिस प्लम एलो जेल was seriously was overhyped. Next overrated and overhyped product of 2021 is, of course, you gonna be like, what, really? But I personally feel that Purito unscented serum is bit overhyped. It's good, I'm not saying it's bad, okay, but मुझे जैसे एक होता ना कि जितनी इसकी हाइप थी कि इट्स वेरी वेरी अमेजिंग, तो मुझे उतना ज़्यादा इसके साथ रिजल्ट्स फील नहीं हुए। पर्सनली व्हाट आई फील, दिस डू हैव 49% ऑफ सेंटेला विच गोना बी सूदिंग, दिस डू हैव सेरामाइड, दिस डू हैव पेप्टाइड्स, दिस डू हैव hyaluronic acid, एक कंकॉक्शन है सारे इंग्रेडिएंट्स का विच गोना हेल्प यू इन वेल एजिंग। बट आई पर्सनली फील कि जब मैंने इसको यूज़ किया, ऑफ कोर्स दिस डू हैव 5% niacinamide एज वेल विच शुड वर्क ऑन योर एक्ने मार्क्स एज वेल। बट मुझे एक ना तो मुझे ब्राइटनेस फील हुआ अपने स्किन पे, ना मुझे एक्ने मार्क्स में रिडक्शन फील हुआ व्हाइल आई वाज यूजिंग दिस वन, और मुझे बहुत ज़्यादा सूदिंग एंड कामिंग भी नहीं लगा बिकॉज दिस हैव सेंटेला, तो दिस शुड सूद योर स्किन आउट। बट मुझे पर्सनली उतना ज़्यादा ये अमेजिंग नहीं लगा एंड आई फील कि दिस वॉज बिट ओवर हाइप्ड दिस ईयर। बहुत ज़्यादा इसकी यूट्यूबर्स, कुछ यूट्यूबर्स इसके बहुत ज़्यादा रेव कर रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। बट आई पर्सनली फील, आई एम नॉट सेइंग, अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट एट ऑल अ बैड प्रोडक्ट, बट आई फील इट्स बिट ओवर हाइप्ड। Next overhyped skincare of 2021 was Olay Retinol 24 Serum. Now इसकी Instagram पे भी इतनी ज़्यादा ads करता है Olay and even YouTube पे भी बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में videos बनाए and I don't know they were paid promotions or what, but I personally feel this is not the best retinol serum available in the market because जब मैं इसको यूज़ करती थी I get irritation, मुझे redness और अजीब सी irritation अपने स्किन में निकलती थी। So मुझे ये पर्सनली उतना अच्छा नहीं लगा है एंड आई थिंक अगर मुझे आगे रेटिनॉल ट्राई करना भी है ना, तो आई वुड रादर गो फॉर प्रिस्क्रिप्शन वाला रेटिनॉल फ्रॉम माई डर्माटोलॉजिस्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज कमर्शियल रेटिनॉल्स। सो
या इन केस इन फ्यूचर में अगर मैं कोई और रेटिनॉल ट्राई करूँगी तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, बट अभी के लिए आई एम नॉट इनटू रेटिनॉल सीरम्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई रादर गो फॉर पेप्टाइड्स और नायासिनामाइड सीरम, बट रेटिनॉल अभी तो नहीं। नेक्स्ट ओवर हाइप स्किन केयर ऑफ 2021 वाज क्लेयर्स का फंडामेंटल वाटरी ऑयल ड्रॉप। ना मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यू नो ये थोड़ा सा ज़्यादा ओवर हाइप है, बिकॉज बहुत ज़्यादा एक आपको रिजल्ट्स देखने को इसके साथ नहीं मिलते हैं, बट इफ़ यू वांट दैट एक्स्ट्रा हाइड्रेशन देन इट्स गुड। लॉन्ग रन में यूज़ करके अगर आपको रिजल्ट्स मिले वो चीज़ अलग है, बट इसके अंदर राइस एक्सट्रैक्ट है, फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स हैं, बंच ऑफ ह्यूमेक्टेंट्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, सेरेमाइड्स हैं, बट जितना टाइम मैंने इसको यूज़ किया मुझे पर्सनली एक ऐसे वाव फैक्टर इसके साथ फील नहीं हुआ। हाइड्रेशन डेफिनेटली प्रोवाइड करता है, बट उसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस बहुत ज़्यादा एक स्किन में जैसे कि कुछ दिखा कि इसको यूज़ करने के बाद कुछ मतलब वो हुआ, वो मुझे कुछ ज़्यादा फील नहीं हुआ। हल्का थोड़ा बहुत ग्लो आता है, दैट्स ऑफ कोर्स बिकॉज आप एक्स्ट्रा हाइड्रेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो ऑफकोर्स स्किन प्लम्प नज़र आएगी, बट उसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा एक एक वाव फैक्टर मुझे इसके साथ नहीं फील हुआ। सो दैट्स वाई आई पर्सनली फील कि दिस वॉज bit overhyped. Next overhyped skincare was One Thing का सेंटेला एक्सट्रैक्ट। यस आई नो, मैंने इसके वीडियो में मैंने इसके वेज बताए थे हाउ यू कैन यूज दिस वन, ओके, और मैंने आपको बताया था कि इट्स फाइन। लाइक मुझे इसने उतना ज़्यादा अमेज नहीं किया, बिकॉज मैं जब इसको कंपैरिजन करती हूँ विद माई कॉजरेक्स का सेंटेला अल्कोहल फ्री टोनर, तो उसमें 10% सेंटेला है, एंड जब भी मैं उसको यूज़ करती हूँ दैट गिव्स मी दैट सूदिंग इफेक्ट, और मैंने उसको समर्स के टाइम पे यूज़ किया था एंड आई फेल इन लव विद दैट, ओके। बट इसके केस में हेयर यू हैव 95% और समथिंग 98 और 95% ऑफ सेंटेला एक्सट्रैक्ट, बट स्टिल मुझे ये उतना ज़्यादा सूदिंग नहीं फील होता है। लाइक आई डोंट नो वाई, क्यों इसकी इतनी ज़्यादा हाइप है। मे बी और लोगों पे ये अच्छे से काम किया होगा, बट I personally feel कि it's bit overhyped. Next overhyped skincare was Neutrogena का light cleansing oil. Now इसकी भी बहुत ज़्यादा hype हो रही थी एंड मैंने भी इसको ट्राई किया। जब मैंने रिव्यू किया था it was fine, but later I realized that it irritate my skin whenever I use this one. मुझे redness, acne वो मुझे निकलते हैं, maybe because of the fragrance in this one or what, I don't know, because I am using cleansing oil in my skincare routine and that has been working really well, but I don't know what's wrong with this cleansing oil. This just doesn't work on my face, and this was also in my disappointment wala list. So yeah, I feel ki this was a bit overhyped. So yeah guys, this is the list of the products which I personally feel are a bit overrated and overhyped this year. I hope you found this video helpful. If you do, don't forget to give this one a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel and follow me on Instagram. I will see you in my next videos guys. Until then, take care and stay beautiful. Bye bye.